Hello students, welcome to Infinity Vision. So in this particular video, we are going to discuss JEE Mains 2024 and the shift is basically what 29th Jan morning shift. So let's start our discussion. Let's see, this is our first question. What is reason? Assertion region based question है, तो पहले assertion देखते हैं. The first ionization enthalpy decreases across a period. ये तो गलत है, assertion incorrect है. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इंक्रीज होता है पीरियड, अक्रॉस द पीरियड इट इंक्रीजेस. रीजन दैट मीन्स देखो, अगर यही रॉन्ग है तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा. एक बार देख लेते हैं. बट द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज द सील्डिंग अक्रॉस द पीरियड. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ऑफकोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उस पर ज्यादा लगेगा, तभी तो उसको निकालना क्या है? मुश्किल है. एंड दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. तो अगर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का ज्यादा लग रहा है बिकॉज ऑफ मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट विल बी डिफिकल्ट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन एंड इन दैट केस आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी व्हाट? मोर. सो अक्रॉस अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज, इट विल नॉट डिक्रीज. सो रीजन इज करेक्ट. सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. इट्स मैच द फॉलोइंग. जिगलर कैटलिस्ट क्या होता है आपका? TiCl4 AlCH3 होल थ्राइस. ब्लड पिगमेंट आयरन. विल्किंसन कैटलिस्ट PPH3 RHCl होता है एंड PPH3 होल थ्राइस RHCl एंड विटामिन B12 को व्हाट? साइनोकोबालामिन. सो दिस व्हाट? कोबाल्ट. तो इसको देख लो आप. A का क्या है? 4 है. A का 4 एक ही में है तो बाकी मैच कर रहा होगा. B का 3 देख लो एक बार. C का 1 एंड D का 2. राइट. सो आंसर विल बी 4. अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, दे हैव टेकन इट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लास्ट में जब आप देखोगे यूजेस, सो इट्स देयर. 3 informations are there like this. Your Wilkinson catalyst, यहाँ पे rhodium है. Then it is what your pigment of blood, iron, vitamin B12, cyanocobalamin. That is what? Cobalt. Okay. And one was basically what? Ziegler's catalyst. वो D block के uses में दिया हुआ है. So uses becomes very important. Please go and read that. जैसे इसके end में कुछ questions हैं, कुछ points हैं, जैसे cisplatin के बारे में दे रखा है, right? ठीक है ना? So EDTA के बारे में दे रखा है, right? Lead poisoning. So these points becomes very important for your April shift. Please go and read that. Now we are moving to the next question. In chromyl chloride test for conformation of Cl minus, a yellow solution is obtained. Acidification of the solution and addition of amyl alcohol and 10% H2O2 turns organic layer blue, indicating formation of chromium pentoxide. That means CrO5. और वो क्या पूछ रहा है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दैट CrO5 इज. तो Cr का बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, वी नो. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5 एंड यू कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 6. सो आंसर क्या हो जाएगा? 1. इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन. आई होप आपने ये कर ही दिया होगा. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. Okay, before that, from where they have taken this question? They have taken this question from systematic, qualitative analysis है. Just अगर आपने नहीं पढ़ा है, the questions are coming from that particular PDF. Just Google systematic qualitative analysis NCERT PDF. You will get that. Okay, please go and read that. The questions are coming, from that. So it becomes very important for your April shift also. Next. The difference in energy between the actual structure and the lowest energy resonance structure for the given compound. It's a very easy question. Answer will be what? Resonance energy. इसमें कुछ explain करने की जरूरत नहीं है. Next. Statement 1. The electronegativity of group 14 elements from Si to Pv gradually decreases. No, it's wrong. Statement 2. Group 14 contains non-metallic, metallic as well as metalloid elements. That is correct. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिकली जैसे कार्बन है, नॉन मेटल है, फिर जर्मेनियम हो गया, ये मेटलॉइड हो गया, और आपका पीबी क्या है? मेटल है. सो यस, दिस इज ट्रू. स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. अच्छा, स्टेटमेंट 1 क्यों रॉन्ग है? देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, इन तीनों का सेम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका बढ़ ही जाता है इनफैक्ट, राइट? So it not gradually decreases, it remains constant till tin and then it increases, right? So answer क्या हो जाएगा? देखो, statement 1 is false but statement 2 is true. So option number 1 will be the answer. You see, they have taken this question from here. यहाँ देखो, silicon, germanium, tin इनका same है and lead का थोड़ा बढ़ ही गया.
इनफैक्ट अगर ग्रुप 14 से पूछा है तो ग्रुप 13 से भी पूछ सकते हैं. ग्रुप 13 भी इंपॉर्टेंट है. बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है एंड थैलियम है. सो दिस व्हाट 2, दिस इज 1.5 एंड हियर इट इंक्रीजेस 1.6, 1.7 एंड 1.8. तो ये ध्यान में रखिए. चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रूबीडियम एटम. तो रूबीडियम एटम है आपके पास. आरबी का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले तो. सो इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 एंड दिस इज 5s1. तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो क्या हो जाएगा 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एस के लिए एजिमुथल एल की वैल्यू क्या होगी 0. एमएल भी -L2L होता है तो वो भी 0 ही होगा. एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज व्हाट प्लस हाफ या माइनस हाफ कोई भी ले सकते हो. यहाँ पे 500 प्लस हाफ, राइट. सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन. तो देखो ये रिएक्शन क्या है. यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है. This is what concentrated HBr in excess and heat is there and they are asking the major product. तो यहाँ पे basically you see this is O and this is CH2 and this is CH3 and here it is CH double bond CH2. तो देखो HBr कहाँ से रिएक्ट करेगा. एक तो इससे रिएक्ट करेगा और एक इससे भी. तो यहाँ पे भी तो एडिशन हो सकता है. So here what will happen basically, जब OH plus लेगा OH प्लस को, राइट तो यहां पे ये क्या बन जाएगा. इट विल फॉर्म व्हाट, ऐसे जोड़ देता हूं मैं, OH पॉजिटिव एंड नाउ Br विल अटैक फ्रॉम दिस साइड एंड दिस बॉन्ड विल ओपन, राइट. तो ये तो PHOH हो जाएगा और CH2 CH3 Br बन जाएगा, राइट. तो यहां पे मैं बना देता हूं इसको. जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट विल बिकम व्हाट OH और ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 Br. अच्छा ये जो पोर्शन है ये वाला CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. तो जो नेगेटिव पार्ट है Br वो यहां आके जुड़ेगा और H वहां जुड़ जाएगा साइड में. तो दिस विल बिकम व्हाट, दिस इज द प्रोडक्ट. देखो HBr एक्सेस में है तो अब ऐसा नहीं करना कि इस OH को भी उड़ा दो, बिकॉज ये OH रिएक्शन में इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज दिस CO बॉन्ड हैज व्हाट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट. तो ये HBr से फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा. तो यहां पे अगर Br लगा हुआ है तो वो तो गलत है, यहां भी Br लगा हुआ है तो वो तो गलत है. आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा. अब देखो यहां पे CHBr है. सो ऑफ कोर्स दिस विल बी ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि Br इस कार्बन से जुड़ेगा बिकॉज कार्बोकटाइन विल बी मोर स्टेबल हियर, राइट, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. द अरेनियम आयन विच इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, राइट. तो ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, देखो यहां पे क्या है तुम्हारे पास NH2 है एंड दिस इज व्हाट. ये भी सिंपल है. आप इसको ऐसे समझो कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा. सो इलेक्ट्रोफाइल विल ईदर अटैक आउट व्हाट ऑर्थो पोजिशन और व्हाट पैरा पोजिशन, बिकॉज NH2 हियर इट इज व्हाट योर, इट विल शो प्लस M इफेक्ट. तो जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा, मान लो अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक किया तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगा, इस यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट. तो मैं इसको बना ही देता हूं. ये मान लो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर रहा है तो इट विल फॉर्म व्हाट, दिस इज व्हाट द पॉजिटिव चार्ज. यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया. इन दिस केस इट विल बी Br प्लस, राइट, एंड दिस इज NH2. ओके, एंड हियर नाउ यू सी इन दिस केस बेसिकली that particular positive charge will get delocalized. फिर ये यहां पे आएगा और फिर ये delocalize होके यहां आएगा. And when the positive charge will come in front of nitrogen, that can get stabilized because of plus M of NH2. Okay. So this positive charge is there. दूसरा अगर मेटा पे अटैक करता है तो इन दैट केस, अगर मेटा पे अटैक करता है, सपोज दिस इज व्हाट द केस, लेट्स सी. अगर मेटा पे अटैक करवाते हो तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल का मेटा पे अटैक करा है तो पॉजिटिव चार्ज कहां बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पे, यहां पे, राइट. सो इट विल लुक लाइक दिस, NH2 हो गया यहां पे एंड हियर इट इज व्हाट electrophile and this is what the positive charge. Now you see this positive charge
When it will go in resonance, the positive charge will come here, and when this will go in resonance again, this will come what here. तो इसका position यहाँ पे है. In any case, it will not come in front of what? NH2. So it will not get stabilized by plus m of NH2. So this particular structure will not. और अगर पैरा में करेगा ना, तो फिर से देखो, अगर पैरा में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हो, दिस इज व्हाट योर NH2 ले लो, एंड लेट्स टेक पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज फिर से यहां बना. अब अगर पॉजिटिव चार्ज यहां बना, देखो ध्यान से, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर देते हैं, यहां NH2 ऐड कर देते हैं, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं. सॉरी, यहां नहीं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन गया. Now again, when you will delocalize the double bond towards positive charge, this positive charge will again come in front of what? N. So again it will get stabilized. तो ये structure नहीं होगा, और ये एक ही जगह है. That is what? Here, if you see, right? So answer will be what? 3. That is the explanation. ऐसे भी देख सकते थे, Br NH2 plus M है, तो Br will come what? Either ortho or para position. It will not come at what? Meta position. तो ऐसे भी देख सकते थे. Anyway, but that is what the explanation of this particular question. Now we are moving to the next part. Appearance of blood red color on treatment of the sodium fusion extract of an organic compound with FeSO4 indicates the presence of. So this is what your FeSCN2 plus or FeSCN3 बन जाता है, right? Blood red. So it is N and S. Option 3 will be the answer. This is a straightforward from NCERT. If you see, this is the question. यहाँ से S और N, right? Blood red. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स में जाके देखना, तो वहां पे दिया हुआ है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. अगेन वी हैव टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड वन इज लेबल्ड एज रीजन. Aryl halides cannot be prepared by replacement of hydroxyl group of phenol by halogen atom. That's true because of that partial double bond character. Reason are, phenol reacts with halogen acids violently. No, it doesn't react with halogen acids violently. So assertion is true, but reason is false. So option number 3 is the right answer. ये भी हमने देखा भी था थोड़ा सा, जब वहां पे हम लोग OH से Br अटैक नहीं करवा रहे थे, मतलब OH को रिप्लेस हमने नहीं किया था जब वो ठीक बेंजीन के बाहर था, right? So this probably assertion you can say that is what more or less same question. Now आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. एक तो तुम्हारा क्या है, Cl2H है, एंड एक क्या है, Cl2CCl4 है. तो H के केस में क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल. तो इट विल बेसिकली व्हाट, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. यहां पे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और यहां पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, इसके नेक्स्ट कार्बन पे यहां पे, बिकॉज दैट फ्री रेडिकल विल बी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, तो यहां पे एक Cl जुड़ेगा और यहां पे एक Cl जुड़ेगा. तो Cl2H प्रोडक्ट ए तो ये हो गया, तो ए आपका ये नहीं होगा. yes, this can happen. I mean this is possible, ये नहीं होगा. अब आंसर 2 और 4 में से ही है. CCl4 में सिंपल एडिशन हो जाएगा, तो एडिशन में ये प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट? सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द, ए के केस में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और बी के केस में सिंपली एडिशन टू द डबल बॉन्ड when CCl4 is the solvent. Okay. Question number 11 is done. Question number 12. Identify the correct pair of the from the following. Fluorspar BF3 नहीं होता है, it is what, CF2 होता है. So it's wrong. तो यही हो जाएगा. इनकरेक्ट ही तो पूछ रहा है वो. क्रायोलाइट ये सही है, फ्लोरोएपेटाइट ठीक है, कार्नेलाइट KCl Mgcl2.6H2O ये भी सही है. So answer option number 1 will be the answer for this question. Now the interaction between pi bond and lone pair of electrons present on an adjacent atom is responsible for. So it's what, resonance effect. ठीक है, कोई एग्जांपल ले लो, जैसे इनामिन का एग्जांपल ले लो, CH2 डबल बॉन्ड CH and this is what, your NH2, right? That lone pair is in conjugation with this pi bond, so resonance. Question number 13 था. चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. KMnO4 decomposes on heating at 513 Kelvin. तो ये क्या हो जाता है, KMnO4 actually it decomposes into what, K2MnO4 plus MnO2 and plus क्या होता है, O2. So what forms, K2MnO4 और MnO2 बनता है. So this is what when you heat KMnO4. So again a straightforward information based question. चलो आगे बढ़ें. In which one of the following metal carbonyl CO forms a bridge
बिटवीन मेटल एटम्स। तो देखो CO2 CO8 में बेसिकली CO2 CO8 में इट फॉर्म्स व्हाट, ब्रिज। और यहां पे CO है, यहां पे CO है और यहां पे CO है, राइट। यहां पे CO है, सॉरी ये कोबाल्ट नहीं है, इट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन मैंने गड़बड़ बना दिया। CO, यहाँ भी CO and this is what CO and this is what CO. So this is CO3, मेटल मेटल बॉन्ड भी है और यहाँ पे 2 कार्बोनिल जो है that is what your that is bridged and rest 6 are what your terminal कार्बोनिल कह सकते हो। ये स्ट्रक्चर इनफैक्ट बना हुआ है, अगर आप देखोगे जाके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब मेटल कार्बोनिल्स के बारे में उन्होंने 5 स्ट्रक्चर्स दिए हैं वहाँ पे, उसमें से ये एक स्ट्रक्चर है। Mn2CO10 में केवल MnMn होगा बॉन्ड एंड रेस्ट 5 CO लगा दो यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट CO CO CO, दिस इज CO 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 एंड दिस इज CO एंड यहाँ पे भी कुछ वैसा ही 5 लगा दो Mn2CO10 में। देयर इज नो ब्रिज्ड CO हेयर। OS3 CO12 का अगर स्ट्रक्चर देखना है तो देख सकते हो, इट्स लाइक दिस। यहाँ पे भी OS कुछ OS और OS से कनेक्टेड होगा एंड हर से 3 CO जोड़ दो, 3 नहीं इनफैक्ट 3 है ना, सॉरी 4 जोड़ दो। तो दैट इज व्हाट CO, दिस इज व्हाट CO एंड दिस इज व्हाट CO। अगर इसको इस व्हाइट बोर्ड को, इस ब्लैक बोर्ड को प्लेन मान लो तो यहाँ पे OS, तीनों OS पे एक CO ऊपर में होगा, एक CO नीचे होगा और बाकी 2 CO इसी प्लेन में होगा, राइट। बट अगेन स्ट्रक्चर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉट गिवन इन NCERT, राइट। सो ऐसे ही जोड़ सकते हो, बस 4 जोड़ दो, ठीक है। सेम Ru3CO12 का भी वही स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे कोई भी CO जो है वो एज अ ब्रिज वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, एज अ ब्रिज लिगेंड, राइट। सो आंसर विल बी व्हाट, CO2 CO8। Now we are moving to the next one, 16. Type of amino acid obtained by hydrolysis of protein. It is what? Alpha amino acid. Very simple question. पढ़ा होगा तुमने. It's a polymer of alpha amino acid. The final product A formed from the following in a sequence. तो यहाँ पे क्या है? H2O H plus है. तो हाइड्रेशन करना है आपको. तो कार्बोकैटायन कहाँ पे स्टेबल बनेगा? ठीक इस बेंजीन के बाहर. तो यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? CH प्लस एंड दिस इज CH3. इसको ब्रेक करो इस साइड एंड देन गिव इट टू व्हाट, H प्लस. तो ये तो CH2 था, CH3 बन गया और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. दिस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन इज स्टेबल. 3 अल्फा H है प्लस यहां पे रेजोनेंस. देन क्या है? वाटर है, तो ये हाइड्रेशन ऑफ मतलब अल्कोहल बनाना था हमें, तो इट विल फॉर्म व्हाट, अल्कोहल, राइट. तो CHOH CH3 बन जाएगा. नेक्स्ट CrO3 है, ये तो पहला हो गया. CrO3 से क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल है तुम्हारा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल फॉर्म व्हाट, एसिटोफेनॉल, COCH3 एंड देन इट इज व्हाट योर रिडक्शन करना है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन. तो ये CO क्या बन जाएगा? CH2, तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर. ओके, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. Which of the following is not correct? Delta G is negative for a spontaneous reaction, सही है. Delta G is positive for a spontaneous reaction. Not correct पूछ रहा है ना, तो यही होगा आंसर. बाकी भी देख लेते हैं. Delta H 0 for a reversible reaction, equilibrium पे Delta G 0 होगा. Delta G is positive for a non-spontaneous reaction. ठीक है. तो second will be what your Delta G is positive for a spontaneous reaction. That will be your incorrect. Delta G नेगेटिव होता है क्या spontaneous reaction के लिए? Next, chlorine undergoes disproportionation in alkaline medium as shown below. अब ये बैलेंस करना, देखो एक तो काम कर सकते हो कि इसको सिंपल पुट करो वैल्यू, ऐसे भी कर सकते हो. नहीं, एक पुट करके देख लिया कितना टाइम लगता है. यहाँ पे 1 रखा तुमने, अब ये क्या है, 2 है और ये क्या है तुम्हारा, 1 है और 1 है. अच्छा, E नहीं दिया हुआ है तो फिर बैलेंस करो. वैसे E निकाल भी सकते हो. क्या ये वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, देख सकते हो. Cl2 2 है, 2 Cl है, O 2 O है, तो यहाँ पे 1 रख दो तो बैलेंस हो गया. यही होगा आंसर. बट इसको एक बार बैलेंस कर लेते, राइट. लेट्स बैलेंस इट.
ये डाइल्यूट कंडीशन होगा, Cl2 एक किस में जा रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, सो इट इज व्हाट Cl माइनस, हाफ रिएक्शन मेथड से मैं कर दे रहा हूं बैलेंस, एंड Cl2 इज गोइंग टू व्हाट योर ClO माइनस। पहला काम क्या करते हैं, क्लोरीन को बैलेंस करो तो 2Cl माइनस, और कुछ तो है नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो चार्ज बैलेंस करो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या करना है बताओ, पहले क्लोरीन को बैलेंस करो तो 2Cl, और ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, वाटर ऐड करो, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O कर दो। अब बेसिक मीडियम है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहां पे 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब 4 हाइड्रोजन है तो इधर क्या ऐड करते, अगर मान लो एसिडिक मीडियम में था तो 4H+ ऐड करते और उसके बाद इलेक्ट्रॉन वगैरह ऐड करते, लेकिन बेसिक मीडियम में तो 4H+ है तो 4OH- भी दोनों साइड ऐड कर दो, और यहां जो H+ और OH- है उसको कंबाइन करके क्या लिख दो, वाटर, तो 4H2O, और इधर क्या लिख दो 4OH-। अब ये 2H2O हटाओ और ये 4H2O हटा के 2H2O लिख दो। अब चार्ज देख लो, यहां पे कितना है, 4 नेगेटिव है और यहां पे 2 नेगेटिव है, दैट मींस हियर इट विल बी व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंपली ऐड ही तो करना है, इसको ऐड कर दो, तो ये क्या बन गया देखो, तो 2Cl2 plus 4OH- gives you what, 2Cl- plus 2ClO- plus 2H2O। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना होगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, सो दिस 1 2 1 1, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। वैसे वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, इतनी कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन एल्कलाइन मीडियम MnO4- ऑक्सीडाइजेस I-। देखो अगर एसिडिक मीडियम है तो दैट I- विल गो टू व्हाट, I2, और अगर एल्कलाइन मीडियम है तो दैट I- विल गो टू व्हाट, IO3-, राइट, ये IO3- में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो क्या बन जाएगा, IO3-। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। यही अगर मान लो एसिडिक मीडियम रहता तो क्या आंसर हो जाता, I2 हो जाता, ठीक है। मतलब इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 4। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, O3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो यहां पे O डबल बॉन्ड O है, राइट, सेंट्रल एटम को हमें देखना है, और ये इसका तो एक लोन पेयर किस में जाएगा, डेटिव बॉन्ड में जाएगा, तो इसके पास एक लोन पेयर हो गया, तो ठीक बात है, ये तो होगा। H2O में देखो तो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर है, तो H2O तो नहीं होगा। SF4 में सल्फर, तो सल्फर के पास एक लोन पेयर, सीसो सेफ होता है पता है, सो दिस इज व्हाट योर F, एक लोन पेयर, तो SF4 भी होगा, सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर, हमें एक ही लोन पेयर देखना था ना, हाँ 1 लोन पेयर, राइट। उसके बाद ClF3 देखो, तो ClF3 में T सेफ होता है, सो दिस इज व्हाट योर F, हेयर F, तो ClF3 नहीं होगा, इसके पास 2 लोन पेयर है। अमोनिया सबको पता है एक लोन पेयर होता है, NH, सो अमोनिया होगा। BrF5 में भी एक लोन पेयर होगा, नीचे रख दो F, दिस इज व्हाट F एंड F, तो BrF5 भी होगा। XeF4 में एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, बाकी फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, तो XeF4 भी नहीं होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4, सो आंसर विल बी व्हाट, 4। क्वेश्चन नंबर 21 डन। 22 देखते हैं, द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विद अ स्टेडी करंट। अच्छा, जिंक सल्फेट है आपके पास, ZnSO4, तो Zn+2 से कहां जाना है, बेसिकली Zn में जाना है, राइट। तो यहां पे इसका इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फैराडेज फर्स्ट लॉ लगा लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास जो भी दिया हुआ है 65.4 डिवाइड बाय व्हाट, 2, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट, एन फैक्टर इसका एक के लिए चेंज कितने का है, 2 का है, तो यहां पे कर दो। अब फैराडेज फर्स्ट लॉ लगा लेते हैं, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ लगाओ तो क्या हो जाएगा, द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस, तो M इज इक्वल टू व्हाट, ZIT, Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, सो दिस इज व्हाट 65.4 बाई 2 अपॉन 96500 इंटू I कहां पे, ये, तो 0.015 इंटू T, टाइम सेकेंड में लेना है हमें, तो T 15 इंटू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। करो अब कैलकुलेशन करना है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे 1000, राइट, और
एक काम करते हैं, इस जीरो को इससे लेके और 10⁻⁻⁴ तो पहले ही क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 65.4 इंटू 15 इंटू इसको क्या ले लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो यहां हटा दो, तो ये कितना हो गया 90 हो गया, अपॉन 965, और 965 का जो एक जीरो है वो इससे कंबाइन कर दो और ऊपर भेज दो, तो इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम। तो अपने को यही कैलकुलेट करना है ना, 65.4 इंटू 15 इंटू 90, तो 65.4 इंटू 15 इंटू 90 डिवाइडेड बाई वॉट 965, तो कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, या फिर इसको रहने दो, इसको हटाते हैं, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 146 9 193, तो 65.4 इंटू 3 इंटू 90 बाई वॉट 193। बस इसी को कैलकुलेट करना, जस्ट कैलकुलेट एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। ठीक है, देख लेना। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 पे चलते हैं। फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप एट सेम टेम्परेचर, ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज दिस। EA1 EA2 EA3 दिया हुआ है आपको, ओवरऑल EA पूछ रहा है, राइट। तो ओवरऑल EA क्या हो जाएगा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, A ओवरऑल, उसको A नॉट बोल देते हैं या A इफेक्टिव बोल देते हैं, कुछ इस तरह से नाम देते हैं, ओवरऑल को A इफेक्टिव इंटू E टू द पावर माइनस E इफेक्टिव, राइट, E इफेक्टिव अपॉन व्हाट RT। तो अपने को यही निकालना है, यू नो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, E इफेक्टिव। अब हमें पता है K क्या है, K इज व्हाट इट इज गिवन, K1 इंटू K2 बाई K3। K1 का एक्सप्रेशन लिख लो, तो क्या हो जाएगा, A1 इंटू E टू द पावर माइनस EA1 बाई RT इंटू K2 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, A2 इंटू E टू द पावर माइनस EA2 बाई RT अपॉन K3 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, A3 इंटू E टू द पावर माइनस EA3 बाई RT। अच्छा, A1 A2 और A3 को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, A1 इंटू A2 अपॉन A3 इंटू, और इसको ऊपर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, E टू द पावर, और एक ही बार ऊपर जाके जोड़ दूं क्या, इसको समझ में आ रहा है ना, क्या करूंगा, ऊपर ले जाके, चलो मैं दिखा देता हूं, EA1 बाई RT इंटू E टू द पावर माइनस EA2 बाई RT इंटू E टू द पावर EA3 बाई RT। तो बस इस पे फोकस करो, इसमें क्या है, पावर एड ऑन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, A1 इंटू A2 अपॉन A3 इंटू E टू द पावर, और मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूं ताकि मैं कंपेयर कर सकूं, ठीक है ना उससे, तो ये क्या हो जाएगा, EA1 प्लस EA2 माइनस EA3 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट RT, तो कॉमन ही होगा। नाउ यू कंपेयर दीज टू, इनको और इनको कंपेयर करो आप, ठीक है, तो ये A इफेक्टिव हो गया, और यहां पे देखो RT तो सेम ही है, तो E इफेक्टिव विल बी व्हाट, सिंपल यहां से आ गया E इफेक्टिव, माइनस तो दोनों में है, तो E इफेक्टिव क्या आ गया, EA1 प्लस EA2 एंड माइनस EA3। EA1 दिया हुआ है आपको कितना 40, EA2 दिया हुआ है 50, तो 40 प्लस 50 माइनस 60, दैट इज व्हाट 30 किलोजूल पर मोल, सो दैट विल बी द आंसर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ओके, यहां पे इक्विलिब्रियम का साइन होगा, ओके, N2O, सॉरी, और यहां पे 4 होगा, N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2NO2, Kp दिया हुआ है आपको और Kc निकालना है। अगेन सो वी नो द रिलेशन, Kp इज इक्वल्स टू क्या होता है, Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो डेल्टा Ng की वैल्यू 1 हो गई, तो डायरेक्टली लिख दो Kc को यहां से, Kc विल बिकम व्हाट, Kp अपॉन RT। Kp कितना दिया हुआ है 0.492, सो 0.492 अपॉन RT, R की वैल्यू कितनी है, क्योंकि Kp आपका ATM में दिया हुआ है, तो R कितना लेना है 0.082, तो 0.082 और इनटू T कहां है, T 300 केल्विन है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आसान लग रहा है, हो जाएगा, ये तो हटा दो पॉइंट, और ये क्या बन जाएगा 82 ना, तो ये 6 टाइम्स कट जाएगा नहीं, और 6 और ये कितना हो जाएगा 50, सो दिस इज बेसिकली व्हाट
1/50 जिसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 100/50 इंटू 10⁻², इसलिए क्योंकि 10⁻² यहां पे दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 2. आंसर विल बिकम व्हाट 2. ओके, सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 24. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन. A solution of H2SO4 is 31.4% H2SO4 by mass. ये परसेंटेज W/W दिया हुआ है और डेंसिटी आपको दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml में दिया हुआ है डेंसिटी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट. द मोलैरिटी ऑफ द H2SO4 सॉल्यूशन. देखो मोलैरिटी हमें पता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास बहुत सारा H2SO4 है, बहुत सारा H2SO4 है, उसमें से तुमने 100 ग्राम निकाल लिया H2SO4. अब इस 100 ग्राम H2SO4 का सॉल्यूशन का H2SO4 सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी होगा वही इसका मोलैरिटी होगा, बिकॉज मोलैरिटी इज व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट टेकन, राइट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. सो मैंने बहुत सारा जो भी अमाउंट ऑफ H2SO4 होगा वहां से 100 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन निकाल लिया. अब उस सॉल्यूशन में अगर आप देखो तो कितने 31.4 ग्राम क्या होगा H2SO4 होगा, है ना, 31.4 ग्राम H2SO4 होगा. और इस 100 ग्राम सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूं. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां से आ जाएगा, वो ml में आएगा, उसको लीटर में भी हम कन्वर्ट करेंगे. तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, एंड देन वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट मोलैरिटी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. ये आएगा किसमें ml में. सो दिस विल बी व्हाट योर, यहां पे एक जीरो और आ जाएगा. सो ये कुछ कितना आ जाएगा 80 ml, नहीं 5 एंड दिस इज व्हाट 400, तो 80 ml आ जाएगा, राइट. हाँ, सो दिस इज 80 ml. लेकिन हमें वॉल्यूम तो लीटर में लेना है, सो इट विल बिकम व्हाट 80/1000 लीटर. नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकाल लो. H2SO4 का मास क्या होता है, मोलर मास 98, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट 31.4 डिवाइडेड बाय व्हाट 98. सो मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 31.4 बाय 98 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 80/1000. जस्ट कैलकुलेट इट, यू विल गेट द मोलैरिटी. ओके, नियरेस्ट इंटीजर निकालना था. कैलकुलेट कर सकते हो इसको, नहीं 31.4 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 80, नहीं, तो यहां से एक जीरो हटा दो और एक जीरो यहां से हटा दो, तो 3140 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 8. तो ये देखो कुछ, ये कितना आ जाएगा 800 में से 16 घटा दो, तो 3140 डिवाइडेड बाई 784 आ जाएगा ये, नहीं. और इसको 3.5 से तो ऊपर ही आने वाला है, दैट मीन्स आंसर विल बिकम व्हाट 4. और 4 भी नहीं आएगा, मतलब 3.5 से 4 के कहीं बीच में आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. नहीं, इनफैक्ट सॉरी 3 पॉइंट नहीं, ये 4 से ही ज़्यादा आएगा ना, लेकिन 4.5 तो नहीं होगा, 4.5 भी हो सकता है क्या, 3 ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ 400 के आसपास होगा, तो नहीं, तो मतलब ये 4.5 से कम ही होगा, राइट. सो द आंसर विल बी व्हाट 4 होगा. कैलकुलेट कर लेना, आंसर 4 होगा. नियरेस्ट इंटीजर में बताना था. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसीजर हाउ टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज दिस मच, पाई इज इक्वल्स टू CRT होता है. सेम सॉल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो पाई1 ऐसे ले लेते हैं, इसको पाई1 ले लो, तो 7 इंटू 10⁵ इज इक्वल्स टू व्हाट C इंटू R इंटू 273, और पाई2 हमें निकालना है, नहीं, तो इसको पाई2 मान लेते हैं. दैट इज इक्वल्स टू, कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगा, सॉल्यूशन सेम है, R की वैल्यू कट जाएगी, और ये है क्या 283. सो जस्ट डिवाइड इट, सो 7 इंटू 10⁵ अपॉन पाई डिवाइड बाई पाई 2 ले लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा 273/283. तो पाई2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज व्हाट 7 इंटू 10⁵ इंटू 283 बाई व्हाट 273, एंड दिस विल कम इन व्हाट, वही पास्कल में ही आएगा, दैट इज व्हाट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जस्ट कैलकुलेट इट, यू विल गेट. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन है बस, राइट. तो क्वेश्चन बहुत आसान है. चलो नेक्स्ट. नंबर ऑफ कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन सल्फर एज हेटेरोएटम. फ्यूरान में ऑक्सीजन होता है, गलत है. थायोफिन,
pyridine में नाइट्रोजन है, पायरोल में भी नाइट्रोजन है, ये भी गलत है। सिस्टीन और टायरोसिन, टायरोसिन में ये OH ग्रुप होता है, फेनॉल, राइट। ये दोनों अमीनो एसिड्स हैं, राइट। और सिस्टीन में क्या होता है, सल्फर होता है। इनफैक्ट दो अमीनो एसिड जिसमें सल्फर है, एक सिस्टीन और एक क्या है, मिथायोनिन है, राइट। CM करके भी याद रख सकते हो। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1 है। नहीं नहीं, टायरोसिन में नहीं होगा, मतलब टायरोसिन में तो OH है, फेनोलिक ग्रुप होता है, राइट, ठीक है। सो इट इज सिस्टीन एंड व्हाट, थायोफीन। सो आंसर विल बी 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक एंड विथ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। देखो पहले बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 का तो 0 ही होगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1, ऐसे 0.5 1, फिर 3 है तो 0.5 और 4 है तो 0, दैट इज व्हाट He2। फिर 5 है तो 0.5, 6 है तो 1, 7 है तो 0.5 और 8 है तो 0। और फिर यहां से तो चल सकते हो ऐसे, 14 से अगर एक कम करोगे तो 0.5 से एक कम करो या एक घटाओ, 0.5 से घटता चला जाता है। 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो 13 पे और 15 पे 2.5, ये 13 पे होगा और ये क्या होगा, 15 पे होगा। थोड़ा आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारे लिए। फिर 12 पे 2 हो जाएगा और 16 पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 11 पे 1.5 एंड 17 पे 1.5, देन 10 पे 1 एंड 18 पे 1, 9 पे 0.5 एंड 19 पे 0.5, इसको नीचे करो, एंड 8 पे 0 एंड 20 पे 0। तो ऐसे देख सकते हो। शुरू करते हैं। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ना, एक पे 0.5 था, 2 पे कितना होगा, 1, तो इसके पास 1 है। जिसका पहले बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा उसको फिर देखेंगे पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, राइट। पहले 1, क्योंकि 1 भी तो होना चाहिए। तो He2 प्लस है, अब He2 प्लस है तो He2 4 होता है ना, 3, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3, तो 0.5 हो गया, 0.5। O2 प्लस में क्या हो जाएगा, 15, तो 15 का मतलब 2.5, O2 प्लस इज व्हाट, 2.5। N2 2 माइनस, इट्स लाइक ऑक्सीजन, तो ये तो 2 हो जाएगा, 16। O2 2 माइनस 18 हो जाएगा तो 1, 18 1। F2 अगेन सेम ही है ये, तो 1। Ne2 प्लस 20 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, 19, तो दिस व्हाट, 0.5। और B2 विल बिकम व्हाट, 10, अगेन व्हाट, 1। तो इतने सारे 1 आ गए, राइट। अब वैसे तो मैं सबका बता देता हूं, लेकिन देखो 1 में सिंपल है। अगर तुम F2 को देखो तो F2 इज व्हाट, डायमैग्नेटिक, सारे पेयर्ड है। ये भी क्या है तुम्हारा, F2 ही है ना, O2 2 माइनस लाइक F2 ही है, तो ये भी डायमैग्नेटिक होगा। B2 और H2 में सिग्मा 1s2 में दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, डायमैग्नेटिक होगा। एक B2 ही बचा, और B2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, राइट। क्योंकि पाई वाला पहले आएगा, पाई 2px पाई 2py। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 हो गए। और उसके बाद पाई 2px पाई 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, तो यहां पे ये तुम्हारा पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। तो आंसर तो इसका 1 आने वाला है। बाकी अगर देखना है तो देख लो, O2 वैसे पैरामैग्नेटिक होता है, एक इलेक्ट्रॉन, और O2 पैरामैग्नेटिक होता है बिकॉज ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हटाए तब भी तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच ही गया, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और कभी भी अगर फ्रैक्शन में बॉन्ड रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा फॉर श्योर, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिग्मा 2pz में, सिग्मा स्टार 2pz में, तो ये भी क्या होगा आपका, पैरामैग्नेटिक। बट इसको हम पैरामैग्नेटिक को लेंगे नहीं। N2 2 माइनस इज लाइक O2, तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इसको नहीं लेंगे हम। He2 प्लस ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इसको नहीं लेंगे। इनको क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 नहीं है। हमें दोनों देखना है, राइट। पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए और 1 भी होना चाहिए। तो ओनली ऑप्शन विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज व्हाट, B2, सो आंसर विल बी 1। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर्म द कंपाउंड गिवन बिलो, नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। तो कीटोन नहीं होना चाहिए और एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। एलिफेटिक एल्डिहाइड ढूंढना है, ढूंढो। बेंजल्डिहाइड नहीं होगा, एसिटल्डिहाइड होगा, एसीटोन कीटोन है, नहीं होगा, एसिटोफेनॉन अगेन कीटोन है, नहीं होगा, मिथनॉल होगा, फोनाइट्रोबेंजल्डिहाइड अगेन एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट
ये तुम्हारे पास एक एल्कीन दिया हुआ है और दिस इज व्हाट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस O3ZnH2O, बॉन्ड ब्रेक करो, O जोड़ो, तो C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज व्हाट CH3 एंड दिस इज H, यहाँ पे भी यही जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, दिस इज H एंड दिस इज व्हाट CH3, ये तो प्रोडक्ट बनेगा P। अब क्या पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट, तो पर मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, सो दैट मीन्स व्हाट, हाउ मेनी ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट, 1, so answer will become what, 1. So this was our last question, right? So paper is very, I will not consider it as a tough paper, right? Paper more or less easy ही है, आप थोड़ा सा बस मैं चाहूँगा कि आप NCERT ज़रूर पढ़ें अप्रैल के लिए, जैसा मैंने भी बताया था आपको कुछ पॉइंट्स, वो सिस्टमेटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट जरूर करके जाइए क्योंकि क्वेश्चंस उससे आ रहे हैं, राइट? And I hope you found this particular discussion what helpful, right? Thank you so much for watching.